Hello students, how are you? I hope you are fine and you are studying very well at your houses during this crucial period of lockdown. So today I am here with further topics of effects of electric current. As all of you know that in last lecture we have covered very basic thing about electric current. Electric current, how it flows into the circuit, what are the requirements that are required for an electric current to flow in the circuit, how can we measure the electric current, what is the potential difference and how we measure the potential difference, what is the resistance in the circuit, what is the formula to find the resistance. These are many basic things. And also, if you remember, we also learned some formulae to calculate potential difference, to calculate resistance, to calculate current. Now in today's lecture, we are going to discuss about effects of electric current. Electric current is covered in the last lecture. I request the new students who are watching this video, I request, if you have not watched my previous video based on basics of electric current, please go and watch that. After that you should come on this. Okay, so in today's lecture we are going to discuss about its effect. Effects means effects of electric current. What are the effects? So let's start. Students, first of all, you observe this figure which is right now coming to the screen. You just observe this figure and just tell me what is the effect of electric current you are able to watch in this figure. First of all, what are you observing in this figure? You should see there is some table lamp, there is a TV, also there is an oven over there. These all are the electrical appliances which are connected by means of a wire, and the current is flowing through the wire. So the basic current is responsible to run all these electrical appliances. Either it is heater, it is oven, it is TV, it is lamp, all that. Now the question is, what is the effect of electric current which is working behind all of them? Okay, that is heating effect of electric current. As you see the oven, what is produced? Heat is produced. Why it is produced? Because electric current is flowing. As you see the lamp, how it is glowing? Because of heating. How this heat comes from? Where it comes from? It is coming from the electric current. Your TV. So all these electrical appliances are the application of heating effect of electric current. Which effect? Heating effect. Just remember, okay? Now observe this second figure. You can see a fan is rotating. आप अपने घर में भी देखते हो, when you switch on the fan starts rotating. Okay, so what is the effect of electric current? Electric current is going from wire to the fan. How it rotates? Because there is a motor inside. Now in motor, how this electric current is going to rotate that motor? You will be know about this when we will be learning about motor in this chapter. This is magnetic effect of electric current. कौन सा effect है? Magnetic effect of electric current. Very good. Let's move forward. Observe this figure. Figure number 3. What are you able to watch in this figure? You can see a ringing bell. There is a key, there is a switch. When you press that, the ring bells. It sounds. What is the effect of electric current? We all know the electric current is flowing, and because of that it is ringing. But how? This is the magnetic effect of electric current. Okay, so you observed different effects like heating effect of electric current, magnetic effect of electric current. Also there are chemical effects of electric currents are also there.
So there are many various effects of electric current. We will be studying one by one in this chapter. Okay, so students, let us start with first of all heating effect of electric current. Which effect? The first effect which you observed, it was heating effect of electric current. So let us define this. Heating effect of electric current किसको बोलते हैं? So you should remember, whenever a resistor is connected into an electrical circuit, whenever a resistor is connected into an electrical circuit, then what happens? The heat is produced. The heat is produced in it. Why? Due to electric current. Due to electric current. Whenever a resistor is connected into an electrical circuit, the heat is produced in it. In it means in resistor. Why the heat is produced? Due to the electric current. And this is called as heating effect of electric current. You people will be writing complete heating effect of electric current, not short form. Okay, now let's understand. Just now I said whenever a resistor, एक resistor को जब आप electrical circuit में लगाते हो, तो according to this definition the heat is produced in the resistor. Correct? The heat is produced in the resistor. Why? Because the electric current is flowing. This was all about the definition. But to get the clear picture, the clear idea, let us analyze this. Okay. So, to further understand this definition, I am going to draw over here a circuit. So, let's draw a circuit, and this is also available in your textbook. Okay. So, to understand this, I require a resistor. So, let us consider there is a circuit, a wire like this, and here a resistor is connected. Then from this resistor a wire extension continues. Okay, and here to measure the current I have connected a device that is called as ammeter. You already know. वो device जो current को measure करता है उसको हम क्या कहते हैं? Ammeter. Then from this device the wire is going. Obviously, if I want the current to flow through the circuit, there are two conditions I have said in the last lecture. First condition is the circuit should be closed. Another condition is there should be a battery or a device which is supplying the power. So let us connect these two wires to a cell. Cell has two terminal, one negative terminal, one positive terminal. Okay, you all know. And then this is going to connect through this wire via a plug की. तो यहाँ पे हमारे पास प्लस टर्मिनल है, यहाँ पे हमारे पास माइनस है. उसके बाद हमने इस सर्किट में से लेट अस से ड्यू टू दिस सेल द करंट I is flowing through this circuit. Here the resistance is there, and now we consider 2 points, one point A and another point B over here. Now I want to measure the potential difference. See, if the current from positive side is going like this, so the current is also flowing from point A to point B, correct?
if current is flowing from point A to point B, then if you remember last lecture, there should always be potential difference between A and B. अरे A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, तभी तो करंट फ्लो हो रहा है. अच्छा, कहां पोटेंशियल ज्यादा होगा? Yes, the potential at A is more, the potential at B is less, because the current flows from point A to point B. It flows from higher potential to lower potential, and that is why this is the direction of current. First thing, it should be very much clear to you. Now I want to measure the difference of potential between A and B. तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हमारे पास कौन सा डिवाइस है? You all know that. Yes, the voltmeter. It measures the potential difference. So I will be connecting a voltmeter here, which will be measuring the potential difference between point A and point B. Are you getting me? And let's say the potential difference between point A and point B, which is measured by voltmeter, let us name this as potential between point A and B, VAB. You can write like that. Of course, this is the voltmeter, but I am writing VAB. VAB means potential difference between A and B. This device is going to measure potential difference between A and B, and that is why I am writing VAB. If you refer your textbook, in textbook, this particular part AB, VAB is written like, is extended from here, and it is written over here like this. But to avoid complexity, I am writing over here like this. Itna clear hai? Okay. Now the important thing is, before going to analyze this circuit, you should remember some basic formulae. If you don't know that basic formulae, you will not be able to analyze this circuit. What are that basic formulae? If you remember in last lecture, we have covered according to Ohm's law, potential difference V is equal to IR. आपको पता होना चाहिए. According to Ohm's law, V is equal to IR. ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था. दूसरा फॉर्मूला, the current flowing in the circuit is equal to charge divided by time. I is equal to Q by T. We have already covered in the last lecture. You should know. Correct? Okay. Now here there is another formula comes for a potential difference. See, the potential difference, I am just using symbol. Potential difference V is also equal to work done by the cell. ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं. Work done by the cell per unit charge. पहले इस फॉर्मूले का मतलब समझ लेते हैं. यहां से मेरी बात सुनिए. यहां पे, यहां से प्लस है, यहां प्लस टर्मिनल, यहां माइनस टर्मिनल. यहां से कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, एंड इट कम्स हियर A. नाउ व्हेन इट वांट्स टू गो फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, इट फाइंड्स सम रेजिस्टेंस. करेक्ट. अब अगर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए मुझे एनर्जी लगाना पड़ेगा. मान लो मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हूं और मैं इस सर्किट के अंदर हूं. आप अपने आप को इस सर्किट के अंदर इमेजिन करो. अब सर्किट में जब आप पॉइंट ए पे पहुंचे और आपने आगे जाना चाहा, तो आपने देखा बीच में रेजिस्टेंस है. रेजिस्टेंस मतलब अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट. अब अगर रेजिस्टेंस है और फिर भी मुझे आगे जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई शुड अप्लाई सम वर्क डन. आई शुड डू सम वर्क टू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस. First thing. So the work done on unit positive charge is nothing but potential difference. This is another formula. Potential difference between point A and point B is equal to amount of work done by unit positive charge to overcome this resistance. अच्छा, एक another language में इसको समझते हैं. क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मैंने यहां से यहां पहुंचने में जितना काम किया, जितना वर्क डन किया, दैट इज नथिंग बट एनर्जी स्पेंड बाय मी टू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस. करेक्ट ना? जब मैं यहां से यहां पे आया तो मुझे कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला. अब मुझे ए से बी में जाना है, देयर इज रेजिस्टेंस. सो व्हाट कैन आई डू?
I will be spending my energy to overcome this resistance, and that is why in some of the books you will find this formula as like this. I am using slash over here to mention this is same formula. You will find like this: potential difference is equal to energy spent by unit positive charge, energy spent on unit positive charge by the battery. ये एनर्जी कौन सप्लाई कर रहा है? बैटरी. ये वर्क कौन कर रहा है? बैटरी. अगर सेल या बैटरी सर्किट में नहीं रहेगा देन वी डोंट हैव द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू फ्लो फ्रॉम ए टू बी. फॉर्मूला क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. तो एक ये फॉर्मूला हम लोगों ने आपको याद रखना है. गाइज आई हैव यूजिंग ओवर हियर स्लैश which indicates both are same formula. The work done is equivalent to energy. Please don't get confused. Okay, so this is the another formula which you remember. By the combination of this formula you will get another formula in this derivation which I'll tell you later. Okay, now come to the circuit. So let us first describe the circuit again and then we start with derivation. हमने एक बैटरी कनेक्ट किया, सेल कनेक्ट किया. सेल में हमारे पास एक प्लस टर्मिनल होता है, एक माइनस टर्मिनल होता है. ओके, एंड वी नो दैट द करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द सर्किट. इट कम्स ओवर हियर. हियर आई एम हैविंग प्लग की. ओके, प्लग की इज क्लोज्ड. क्लोज मीन्स देयर इज कनेक्शन बिटवीन टू वायर and the current I is flowing into the circuit. When it reaches to the point A, we are having the resistance over here. Now to overcome this resistance, this current, this unit positive charge has to do some work. The cell has to apply some energy on that charge which is equal to voltage into charge, and it comes here. Now to measure the potential difference between point A and point B, we should have some device which will be measuring the potential difference, and that device is nothing but voltmeter. Now to measure the amount of current flowing into the circuit, what is necessary? Obviously we should have another device which will be measuring the current, and that is your ammeter. Now let us put some positive and negative sign. You can see the current is coming from here to here, so this will be my positive terminal of ammeter and this will be my negative terminal of ammeter. Similarly from here the current will be flowing from here to here, that is why this is positive terminal of voltmeter and here it is negative terminal of voltmeter. इतना clear है? Let's start. Now just look at this formula. Guys, from this formula can I write, just look over here, can I write this energy E will be equal to voltage into charge. ये चार्ज डिनोमिनेटर में है, डिवाइड में है. अगर मैं इसको यहां लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो आई कैन राइट दिस एनर्जी इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू चार्ज. करेक्ट ना? सो वी आर स्टार्टिंग आवर डेरिवेशन फ्रॉम हियर. सो यू विल राइट द एनर्जी required for a charge, or you can write like this: the work done. Better to write the work done. The work done on unit positive charge to go from point A to point B will be equal to E, energy, is equal to, according to this formula, voltage, potential difference. But here you mention potential difference between A and B, so I have mentioned potential difference between A and B multiplied by charge. पक्का? क्लियर है? ओके. नाउ कम अगेन टू द फॉर्मूला सेक्शन. गाइस, यू ऑल नो पावर. पावर एक ऐसी यूनिट है
जो हम हमेशा मैकेनिक्स में भी यूज करता है, इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज करता है और वेरियस अनदर सेक्टर्स में भी हम लोग यूज करते हैं, उसके अलग अलग फॉर्मूला है। बट द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल पावर P इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। कितना काम हुआ कितने टाइम में, दैट इज कॉल्ड एज पावर। ओके, अच्छा, हमने अभी देखा वर्क और एनर्जी इक्विवेलेंट है या नहीं, तो आई विल बी यूजिंग दिस सेम फॉर्मूला विद दिस, पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। दिस वर्क एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट, आई हैव एक्सप्लेन्ड राइट नाउ। So in formula of power we can use work and energy as equivalent. Now इसको भी हम लोग बॉक्स बना लेते हैं, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, भूलना नहीं है आपको। Now come here, the electrical power P is equal to, क्या लिखेंगे, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। एनर्जी का फॉर्मूला हमने अभी देखा, VAB, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B मल्टीप्लाइड बाय चार्ज डिवाइड बाय टाइम, करेक्ट ना। ये कहां से आया, VAB इंटू Q कहां से आ गया, E की जगह पे, यू विल बी राइटिंग ओवर हियर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड पुट दिस एज इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ रही है बात। Now just look over here, you can see in this formula, in this particular term we are having Q by T, guys, we are having Q by T. Just look, what is Q by T? Q by T is nothing but equal to I. Q by T is equal to I. So from this I got power is equal to VAB as it is multiplied by Q by T. Q by T is I. I can write I over here, and here in the reason you will be writing I is equal to Q by T. इतना क्लियर है। यहां से हमको पावर की एक इक्वेशन मिली, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 डालेंगे। ओके, नाउ कहां लिखूं, ओके, व्हाट यू हैव टू डू is just copy down this formula, just copy here. I am going to rub this section, okay, and I'll continue over there. तो अगर आपने कॉपी नहीं किया तो प्लीज ये फॉर्मूले को अलग से साइड में कहीं भी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको कॉपी करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, ये सारे फॉर्मूले प्लीज याद रखना, भूलना मत। नाउ गाइज, हमने अभी डेफिनेशन के अंदर देखा, दिस वॉज आवर डेफिनेशन, करेक्ट, यहां से लेके यहां तक, कि व्हेनेवर अ रजिस्टर इज कनेक्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सर्किट द हीट इज प्रोड्यूस्ड। क्या प्रोड्यूस हो रहा है, द हीट इज प्रोड्यूस्ड। लेट अस फाइंड कितना हीट इस रजिस्टर में प्रोड्यूस होगा। अच्छा, हीट भी एक तरह की एनर्जी है या ना, हीट भी एक तरह की क्या है, एनर्जी है। और हमने अभी एक फॉर्मूला देखा था कि द पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। हीट भी एक तरह की एनर्जी है, करेक्ट ना। सो आई कैन राइट दिस एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। फ्रॉम दिस फॉर्मूला आई विल बी राइटिंग एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ये मैंने एक अलग से लिखा हुआ है, ये आपके डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, आपको समझाने के लिए। हम लोग यहां पे लिखेंगे द heat produced in the resistor is heat energy is equal to power multiplied by time. Now power, from this equation, voltage into current, power is what, voltage into current. So I can write heat is equal to, power की जगह मैं लिखने जा रहा हूं VAB इंटू आई मल्टीप्लाइड विथ टी। ये VAB इंटू आई कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। नाउ हमने अभी ओम्स लॉ देखा था गाइज। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है, हमने अभी साइड में फॉर्मूला लिखा था V इक्वल टू आई आर,
This is our Ohm's law, correct na? So in place of voltage I can write current multiplied by resistance, and this current I copy as it is, this time copy as it is. Now you can see I into I into I, it becomes I square. This R will be as it is, this time will be as it is, copy, and left hand side I am having H. Now we have arrived at another important formula. H is equal to I square multiplied by R multiplied by T, and this is nothing but Joule's law of heating. So highlight this like this. H is equal to I square multiplied by R multiplied by T. This is what? This equation I am writing over here. This equation is known as Joule's law of heating. Very important. This is known as Joule's law of heating. एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकता है what is Joule's law of heating. So what you have to do is you have to make this circuit and you have to start your derivation from here. The work done on, यहां तक तो डेफिनेशन था, यहां से आपका डेरिवेशन स्टार्ट हुआ. द वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम हियर टू हियर. सो लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन दिस. एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि कोई स्टेप अगर आपको नहीं समझा हो तो हम समझ लेवे. द वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन का फॉर्मूला था हमारे पास एनर्जी. वर्क डन इज नथिंग बट इक्वल टू एनर्जी VAB इंटू Q. नाउ द इलेक्ट्रिकल पावर इज वर्क अपॉन एनर्जी अपॉन टाइम. एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? VAB इंटू Q. वो हमने पुट कर दिया और टाइम से डिवाइड किया. जब चार्ज को टाइम से डिवाइड करोगे तो आपको I मिलेगा और आपको मिला पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट. देन व्हाट वी हैव डन, हमने सोचा कि हीट प्रोड्यूस, हीट कितना प्रोड्यूस होगा? हीट विल बी इक्वल टू पावर इंटू टाइम. पावर कितना है हमारे पास? वोल्टेज इंटू करंट. हमने पुट कर दिया यहां पे. मैं यहां पे लिख देता हूं ब्रैकेट बना के पावर की जगह हमने वोल्टेज इंटू करंट को पुट किया. देन अगेन वोल्टेज की जगह हमने IR को रखा बिकॉज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR. सो यू शुड रिमेंबर these all terms which are there in the bracket are these are substituted terms. Then I into I square, R as it is, time as it is. Then we got H, heat produced in the resistance is equal to I square multiply by R multiply by T. कहने का मतलब ये है कि ये रेजिस्टेंस जो इस सर्किट में लगा हुआ है इसमें कितना हीट प्रोड्यूस होगा दैट डिपेंड्स अपॉन करंट. कितना करंट जा रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेजिस्टेंस से, कि इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, कितने टाइम तक करंट सर्किट के अंदर फ्लो हुआ है. एंड दिस इक्वेशन इज नथिंग बट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू पीपल. मजा आया? क्या करेंगे, स्क्रीन को पॉज करेंगे, डेफिनेशन से लेकर के यहां तक पूरा का पूरा कॉपी करिए. हम आगे बढ़ते हैं. चलिए कॉपी हो गया, कॉपीड. सो लेट मी रब दिस. ओके, मजा आ रही है? आर यू एंजॉइंग दिस? वेरी गुड. नाउ गाइस, वी स्टडीड पावर, इलेक्ट्रिकल पावर. पावर का क्या फॉर्मूला हमारे पास आया? वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम. और हमने अभी देखा पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट. हमने यहां पे अभी पुट किया था. सो लेट अस फाइंड यूनिट ऑफ पावर. हेडिंग डालेंगे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर. क्या हेडिंग डालेंगे? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर. As you know that electrical power is voltage multiplied by current. अच्छा, वोल्टेज का फॉर्मूला हमने अभी यहां पे लिखा था. वोल्टेज इज नथिंग बट
एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज, बेटर टू यूज सिंबल्स, हमने अब भी लिखा था ना, एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज। और करंट हमने अब भी देखा, करंट इज नथिंग बट चार्ज डिवाइड बाय टाइम। गाइस अगर आपको भारी लग रहा है मैं यहां पे लिख देता हूं, हमने फॉर्मूला लिखा था वोल्टेज इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज या वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज, हमने अब भी लिखा था। और हमने ये भी लिखा था द करंट आई इज क्यू बाई टी, उसी से ये फॉर्मूला आ रहा है जो मैंने फॉर्मूला भी यहां लिखा था, कॉपी कर लिए, आपको बहुत फायदा देगा ये फॉर्मूला और आपको याद भी रखने हैं। नाउ यू कैन सी ओवर हियर द चार्ज एंड चार्ज गेट कैंसिल, ऊपर क्या बचा मेरे पास एनर्जी, नीचे मेरे पास क्या बचा टाइम। गाइस कैन यू टेल मी व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी? वेरी गुड, द यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। व्हाट इज यूनिट ऑफ टाइम? एसआई यूनिट। वेरी गुड, द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। सो वी हैव अराइव्ड एट द यूनिट ऑफ द पावर. Unit of power is joule per second. So we can write this as unit of कौन सा पावर? Obviously electrical. Electrical power is joule per second. Students, this joule per second combinedly called as watt. इसी का नाम होता है वॉट। आपने सुना होगा हमारी मोटर 500 वॉट की है, 600 वॉट की है, 240 वॉट की है, बल्ब इतने वॉट का है। दैट वॉट इज नथिंग बट द पावर। सो फ्रॉम दिस यू कैन इजीली से दैट 1 वॉट पावर इज ऑलवेज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। क्लियर हो गई यहां तक बात? पक्का? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर है? नो, वेरी गुड। कॉपी करेंगे इसको, यूनिट ऑफ पावर को, ठीक है। चलिए अच्छा, इसमें एक और चीज समझते हैं हम। आप लोगों ने अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखा होगा। अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल के अंदर आप देखोगे तो वहां आपका जो पावर कंजम्पशन लिखा होता है वो किलोवाट में होता है। किस में होता है? किलोवाट। अब आप 10th स्टैंडर्ड के अंदर आ गए हो, ऑब्वियसली आपको वॉट और किलोवाट में डिफरेंस पता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम इस तरह लिखते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, करेक्ट ना? इन सिमिलर फैशन 1 किलोवाट इज ऑलवेज इक्वल टू 1000 वॉट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट। समझ में आ गई बात अच्छे से? अच्छा, अब एक बात मेरी ध्यान से सुनना। हमने अभी फॉर्मूला लिखा 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, करेक्ट ना? लेकिन ये जो वॉट क्वांटिटी है बच्चों, ये बहुत छोटी क्वांटिटी है। वॉट इज वेरी स्मॉल एंड द पावर इन आवर हाउसेज विच वी आर यूजिंग इज वेरी ग्रेट। हम लोग पावर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है और वॉट बहुत छोटा यूनिट है। तो जब हम बड़ी चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी क्वांटिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमको बड़ी यूनिट की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको यहां से अर्थ से लेके मून तक का डिस्टेंस नापना है तो किस में मेजर करेंगे आप? सेंटीमीटर में? क्या आप मिलीमीटर में मेजर करेंगे? नो, यू आर गोइंग टू मेजर इन किलोमीटर, इन लाइट ईयर, इन लाइट सेकेंड। बिग क्वांटिटीज विल बी यूज्ड टू मेजर, big units will be used to measure big quantities. Similarly, the power in our houses which we are using are very big. That is why we are using kilowatt. But again, अगर आप अपने घर में किसी को पूछोगे कि हमारा इस महीने में कितना पावर यूज हुआ, तो आपको वो रिप्लाई करेंगे 50 यूनिट, 60 यूनिट, 70 यूनिट। अब ये यूनिट कहां से आ गई? आप बोलेंगे सर हमने तो पावर का यूनिट पढ़ा था वॉट, या फिर बड़ा यूनिट किलोवाट। सर ये यूनिट कहां से आ गई? 1 यूनिट, 2 यूनिट। गाइज लिसन, इफ 1 किलोवाट पावर is used for 1 hour, if 1 kilowatt power is used for 1 hour, then power consumed
is called as better to write with different color pen so that can be highlighted. It is called as 1 kilowatt hour, and this 1 kilowatt hour is shortly written as 1 kWh. आपको आपके लाइट बिल के अंदर जो यूनिट मिलती है, 1 यूनिट इज नथिंग बट इक्वल टू दिस. Are you getting me? Means if you are using 1 kilowatt and this 1 kilowatt power is used for 1 hour, that means you have consumed 1 kilowatt hour power. एग्जाम्पल ले लो, आपके घर में एक टेबल फैन है और वो टेबल फैन का पावर कंजम्पशन है 1 किलोवाट. कितना किलोवाट? 1 किलोवाट उसका पावर कंजम्पशन है. और मान लो आपने उस टेबल फैन को 1 घंटे तक चलाया, तो आपने कितना पावर कंज्यूम किया? यू हैव कंज्यूम 1 किलोवाट आवर. यू हैव कंज्यूम 1 किलोवाट आवर. अच्छा, ये 1 किलोवाट आवर को आप वॉट में लिख सकते हो. कैन यू कन्वर्ट दिस 1 किलोवाट आवर इनटू वॉट? क्या आप ट्राई करेंगे अपने घर में? आप क्या करना, 1 किलोवाट आवर को 1 वॉट में कन्वर्ट करो और नीचे कमेंट में मुझे बताओ आपका आंसर क्या आया. ठीक है, बताओगे? डरोगे तो नहीं? बहुत सिंपल है. 1 किलो मतलब 1000. 1 घंटा, 1 घंटे में कितने सेकंड होता है? 60 इंटू 60, 3600 मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा. चलो, आंसर मैंने बता ही दिया, आप ट्राई कर लेना. या तो फिर एक काम करो, अभी स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो. पॉज और स्क्रीन ट्राई. पॉज करो. चलो, कर लिया? ओके, नाउ लेट्स सी. मैं ये कहना चाहता हूं 1 किलोवाट आवर, ऐसा ही है ना? किलो मतलब क्या होता है? किलो मतलब 1000. आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब 1 घंटा. 1 घंटे में हमारे पास 60 मिनट्स है और 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकेंड्स होते हैं. करेक्ट ना? जस्ट यू मल्टीप्लाई दिस नंबर, यू विल गेट वॉट. करेक्ट? क्योंकि देखो, हमने किलो के लिए क्या लिखा? 1000, और हमने आर के लिए क्या लिखा? 60 इंटू 60. वॉट हमारा एज इट इज कॉपी हो जाएगा. सो यू गेट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 6 6 36. 36 will be copied as it is. 1 2 3 4 5. There are 5 zeros, means you can write 10⁵. इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, 3.6 डेसिमल को यहां पे लेके आओ, 10⁶. दिस इज नथिंग बट 1 किलोवाट आवर. क्या आपको बात समझ में आ गई? 10⁵, 10⁶ से कंफ्यूज मत होना. 10⁵ का मतलब इसके आगे 5 जीरो, और 10⁶ का मतलब इसके यहां से पॉइंट से हम काउंट करेंगे 6 0. ठीक है? पक्का? डाउट तो नहीं है? दिस इज वॉट यू आर यूजिंग इन योर हाउसेस. आपका आज का काम ये रहेगा, अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल लो और अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल के अंदर आप देखकर, आप सब, ये आपका होमवर्क है, just take the electricity bill of your last month. This is your May, so take April's electricity bill and check out that. और आप मुझे बताएंगे अब टेलीग्राम में मैसेज करके कि आपने लास्ट मंथ में कितना यूनिट यूज किया था, कितना किलोवाट आवर आपने यूज किया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल. यह आपका होमवर्क रहेगा. ओके? So we have discussed about unit of electrical power. Now students, let us discuss about the application of heating effect of electric current. Sir, heating effect तो आपने पढ़ाया, लेकिन क्यों पढ़ाया? इसका एप्लीकेशन क्या है? हम इस heating effect को कहां पे अप्लाई कर सकते हैं? ओके, so let's discuss about that. हेडिंग क्या डालेंगे? हेडिंग डालेंगे application of heating effect of electric current. Application of heating effect of electric current. चलिए गाइस,
इसके एप्लीकेशन बहुत सिंपल है, आप डे टू डे लाइफ में जो एप्लीकेशन यूज करते हैं मैं वहां पे लिखाने जा रहा हूं। सबसे पहला इलेक्ट्रिकल कुकर। हम अपने घर में नॉर्मली जो यूज कर रहे हैं दैट इज प्रेशर कुकर। हम उसको गैस पे रखते हैं, फिर वो आप खाना पकाते हो उसके अंदर, दैट इज प्रेशर कुकर। लेकिन उसी तरह का एक इलेक्ट्रिकल कुकर भी होता है। वहां पे हम लोग बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कॉइल हम उसको गर्म करते हैं। एक्चुअली द हीटिंग इज ऑब्टेन्ड बाय दैट कॉइल एंड वी आर यूजिंग दैट कॉइल इलेक्ट्रिकल कुकर। अनदर इज वाटर बॉयलर। आपने देखा होगा एक हीटर होता है, मार्केट में मिलता है इस तरह का, इस तरह से दो रॉड्स होंगे और यहां पे नीचे इस तरह की एक कॉइल लगी होगी। कॉइल मीन्स नीचे जाके जो मटेरियल होता है इट इज वाउंडेड लाइक दैट, इट इज कॉइल्ड स्ट्रक्चर एंड दिस इज नथिंग बट योर वाटर बॉयलर। इस यहां पे आप पानी को रखोगे, इसको आप बाल्टी में डालते हो, द वाटर इज फिल्ड ओवर हियर एंड दिस हीट्स अ वाटर, सो दिस इज वाटर बॉयलर। ये सेकेंड एप्लीकेशन था। उसके बाद आपने देखा होगा हमारा इलेक्ट्रिकल बल्ब। इलेक्ट्रिकल बल्ब में भी हमारा कौन सा इफेक्ट है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। व्हाई? देखो ये जो हमारा वाटर बॉयलर है गाइस, इसमें हम लोग यूज करते हैं निक्रोम। द मटेरियल विच इज यूज्ड इज द मटेरियल विच वी आर यूजिंग इज नथिंग बट एन अलॉय। एक अलॉय, कौन सा अलॉय है? निक्रोम। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? निक्रोम। निक्रोम मतलब एक्चुअली ये दो मटेरियल से बना हुआ, इट इज एन अलॉय। अलॉय मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू मटेरियल्स, वन इज निकल एंड अनदर इज क्रोमियम। क्रोमियम, निकल का सिंपल पीरियड टेबल में आप देखेंगे Ni, इसका मिलेगा आपको Cr। इसको हम लोग निकल और क्रोमियम से मिलाकर बनाते हैं, दिस इज निक्रोम। अब क्वेश्चन ये कि निक्रोम क्यों यूज करते हैं गाइस? देखिए अगर हीट मान लो इसके अंदर से फ्लो हो रही है और मान लो हीट फ्लो होने की वजह से इसका टेम्परेचर हो गया 250 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये क्या हो जाएगा? प्लास्टिक। ऑब्वियसली प्लास्टिक मेल्ट हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे जो मटेरियल यूज करना पड़ेगा, दैट मटेरियल्स मेल्टिंग पॉइंट शुड बी वेरी हाई। इट शुड बी द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस मटेरियल शुड बी इनफ टू विथस्टैंड हाई अमाउंट ऑफ हीट। करेक्ट ना? इसीलिए हम लोग इस अलॉय का यूज करते हैं। आपको पता होना चाहिए द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस अलॉय निक्रोम इज मेल्टिंग पॉइंट, इट इज 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। आपका वाटर कहां पे बॉयल होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका पानी गर्म हो जाता है, इट बॉइल्स, बट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस इज 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज 14 टाइम्स मोर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, so it can withstand high amount of heat in it। अगर कोई दूसरा मटेरियल यूज करता है जो 50 डिग्री पे मेल्ट हो जाता है, तो पता चला आपका पानी बॉईल होने से पहले ही वो मटेरियल ही मेल्ट हो गया। इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो रजिस्टर यूज करेंगे, जो मटेरियल यूज करेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा एंड इट इज जनरली ऑब्टेन्ड बाय अलॉय। करेक्ट? यहाँ पे आ जाओ इलेक्ट्रिकल बल्ब में। गाइज इन केस ऑफ बल्ब यू ऑलरेडी नो व्हाट वी आर यूजिंग इज टंगस्टन। टंगस्टन पीरियोडिक टेबल में उसका सिंबल आपको मिलेगा W। ये बल्ब के अंदर यूज होता है। हम लोग जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, द टंगस्टन फिलामेंट गेट्स हीटेड। व्हेन इट इज हीटेड इट लिबरेट्स द लाइट एनर्जी। जब ये गर्म होता है, हीट अप होता है, तो ये क्या करेगा? इट रेडिएट्स। व्हाट इट रेडिएट्स? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पढ़ लिया ना? There are 7 types of electromagnetic wave. What we can see is visible light. So it gives us the light, and that light energy is obtained from heat energy. That heat energy is obtained from electrical energy. अच्छा, ये जो टंगस्टन है इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? The melting point of tungsten, it is approximately 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। यू कैन इमेजिन, इसका 1400 था, इसका 3400 डिग्री सेंटीग्रेड।
So why we are using such a kind of material which are having such a kind of high melting point? Because if you are using the resistor which have low melting point, that material will probably melt and it will not be more applicable to our electrical appliances. And that is why we are using the materials which are having higher melting points. Correct ना? Just copy this. पॉज करो, स्क्रीन कॉपी करो, हम आगे बढ़ते हैं. चलिए कॉपी हो गया. आई होप ऑल ऑफ यू हैव कॉपीड दिस. नाउ गाइस, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं. टाइम हो गया अच्छा खासा, हम लोग स्टॉप करते हैं इसको. आप होमवर्क ले लीजिए. होमवर्क क्या था आपका? मैंने अभी आप लोगों को बताया था क्या करना है. टेक योर इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ अप्रैल का अपना बिल लो और उसमें आप फाइंड करो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपने यूज़ किया है. नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है. पहला होमवर्क आपका ये. द सेकेंड विच यू हैव टू डू इज वी हैव जस्ट नाउ वी हैव डन अ डेरिवेशन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इट इज इंपॉर्टेंट with all formula which I have mentioned over there inside. You have to write all this in your homework book 2 times. ठीक है, तो आज का लेक्चर आप देखेंगे शुरू से लेकर एंड तक. अपने टेक्स्ट बुक के अंदर भी जाकर जहाँ तक मैंने पढ़ाया है वहाँ तक पूरा पढ़ेंगे. उसके बाद ये दोनों होमवर्क, अपना इलेक्ट्रिक बिल लो अप्रैल महीने का और मुझे देख के बताओ आपने कितना नंबर ऑफ यूनिट्स आपने यूज़ किया है. और दूसरा ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का डेरिवेशन विद ऑल फॉर्मूले 2 टाइम्स यू हैव टू डू इन योर होमवर्क बुक. ओके. और भी अगर आपको आज के लेक्चर के रिलेटेड कुछ समझना है कमेंट करके मुझे बताओ. अगले लेक्चर में हम लोग बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ेंगे और वो है हमारे घर का इलेक्ट्रिकल सर्किट. आपके घर में अपना इलेक्ट्रिकल सर्किट देखा है ना, एसी भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, फ्रिज भी चल रहा है, वॉशिंग मशीन भी चल रहा है. हाउ दिस सर्किट इज कनेक्टेड, व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग दिस सर्किट, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दी नेक्स्ट लेक्चर. तब तक के अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, स्टडी करते रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बाय.